Good morning, everyone. We're going to start our new chapter that is People as Resources of ninth class. The section is Economics. By this word, people and resource, what do you mean by people and what do you mean by resources? People is something जो आप अपने आसपास देखते हो, that is human being, and resources are the things that has been gifted by nature to us to make our life easy or helpful. ठीक है, जैसे air we breathe, then water we drink. These are all resources. In this chapter हम लोग ये पढ़ेंगे कि people जो human beings है वो एक resource कैसे बन जाते हैं, कब बन जाते हैं और क्या basically process होता है कि जब human resources बनते हैं तब. So let's begin the topic. हमारा सबसे पहला आपके बुक का चैप्टर में एक वर्ड लिखा हुआ है asset and liability. The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for an economy rather than a liability. Okay, तो ये asset और liability से मैं आपको बताना चाहती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है. People as मतलब जो लोग हैं, okay, अगर वो resource की तरह यूज हो रहे हैं, the population which has been using like a resource for to a country, तो वो उसका asset कहलाएगी. What is asset? Assets are the thing that is useful for us. For example, मेरे घर में एक टीवी है, ठीक है, but at the same time I also have a radio that I have not been using for several years, so that is a liability for me and TV will be an asset for me. तो वही सिमिलर थिंग गोज विद द पॉपुलेशन. जब पॉपुलेशन एक कंट्री के लिए यूज में आ रही है, यूजफुल है, इट विल बी कॉल्ड एज एसेट, एंड जब वो यूज में नहीं आ रही है इट विल बी कॉल्ड एज लायबिलिटी. ओके, population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. Okay, तो नॉर्मल जो पॉपुलेशन है वो इन्वेस्ट जब उस पर इन्वेस्टमेंट करी जाती है. ओके, पॉपुलेशन एक ह्यूमन कैपिटल कब बनता है? जब वेन एवर a person is the person get educated, trained and also have a medical care facility, then the population changes to human capital. Okay, for example, we as a you as a student are now going to the schools. ठीक है, you have been educated, then आप लोग colleges में आओगे, आपको training program में डाला जाएगा. At the same time you are also getting medical facility. अगर आप बीमार होते हो तो आपके parents आपको medical facilities देते हैं. So you are being turning as a human capital. Okay, with the skills you have, with the productive knowledge you will be having, so this changes to the normal population changes to human capital. Okay, I think I'm clear. Okay, moving on to the next topic. Hmm. Okay. People as a resources is a way of referring to a country's working population. People as resources, जो हमें जो लोग resources की तरह use में आ रहे हैं, they are known as the working population of the country because they have skills, because they have abilities, because they are contributing to the gross national product. What is gross national product? Basically, they are contributing to the economy of the country. They are जैसे अगर मेरी job लग गई है, I'll be paying taxes. So then it will be counting it in as a gross national product overall. Okay, and when देखो suppose it is a simple population changes to people as resource and people as resource changes to human capital. Fine, check out the box over here. When the existing human resources is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. That adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. फाइन, आई थिंक अब मेरी बात आपको समझ आ गई होगी. एक नॉर्मल पॉपुलेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years, they are the population of the country. Fine, they are getting educated, they are getting training, they will become what? People as resource. Okay, basically human resource. And when they will be adding to the production of the country, ठीक है, adding to the economy of the country, they will be called as the human capital formation. So human capital formation adds to the productive power of the country,
जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिजिकल कैपिटल क्या होता है पहले तो ये जानो। तो फिजिकल कैपिटल होता है जो हमारे पास लैंड है, ठीक है, आपके पास फैक्ट्रीज में मशीनरी है, उन सबको हम फिजिकल कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। बट human capital is one way superior to other resources like land or physical capital or anything. Why? Because अगर आपके पास सपोज लैंड है लेकिन आपको उसको यूटिलाइज नहीं करना आ रहा है कि आप उसमें एग्रीकल्चर करोगे या आप उसमें कोई इंडस्ट्री बनाना चाहते हो, तो दैट इज ऑफ नो यूज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स में अगर आप डेवलप करोगे, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन आ गई, आपने वहां पे फैक्ट्री बना दी, फिर आपने वहां पे मशीनरी लाके सेटअप कर दी, तो यू विल ऑब्वियसली अर्न मनी, ठीक है। दैट विल इंक्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ योर्स एज वेल एज इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ओके, for many decades in India, a large population has been considered as a liability rather than asset. But a large population need not to be a liability. हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन लाइबिलिटी है, ठीक है, जो कि हमारे नेशनल इनकम में, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन वो एक एसेट बन सकती है अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट को इस सब में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी का मैं एक छोटा एग्जांपल दे देती हूँ आपको। अगर आपने देखा होगा, आप किसी गंगा घाट पे जाएंगे या यमुना के घाट पे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कि तेज फ्लो में भी दे आर एबल टू स्विम प्रॉपर्ली। इफ यू रिमेम्बर ओलंपिक्स में या जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, हम लोग उसमें कोई मेडल नहीं जीत पाते हैं गोल्ड में। और स्विमिंग का तो हमें एक्चुअली में पता भी नहीं है कि कौन पार्टिसिपेट करता है। अगर उन लोगों को प्रॉपरली ट्रेन किया जाए तो डोंट यू थिंक कि क्या पता हम अच्छा, नो, हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले, क्या पता हम भी ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए। तो ऐसे ही इस ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बेसिकली आपका स्किल्स डेवलपमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ योर्स। ओके, जस्ट लेट्स डिस्कस दीज टू केसेस एंड आपको डिफरेंस अपने आप समझ आ जाएगा। तो पहले हम स्टोरी ऑफ साकाल पढ़ेंगे। देयर वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड साकाल, दे वर लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। ओके, साकाल 12 इयर्स का है, उसकी मम्मी शीला है जो कि डोमेस्टिक वर्क देखती हैं, उसके फादर भूटा चौधरी वो एक एग्रीकल्चर फील्ड संभालते हैं। साकाल अपनी मम्मी की हेल्प करता है डोमेस्टिक वर्क में और अपने यंगर ब्रदर जीतू और सिस्टर के साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई करता है, उनकी देखभाल भी करता है। तो उसके जो अंकल हैं श्याम, ही हैज पास द मेट्रिकुलेशन एग्जाम इज 12। ओके, बट ही वाज सिटिंग आइडल इन द हाउस, उनको कुछ जॉब मिली नहीं खास। भूटा और शीला वर ईगर टू टीच साकाल, मतलब उनके पेरेंट्स चाहते थे कि साकाल पढ़े, तो उसके उसको फोर्स किया और बोला कि भाई विलेज में पढ़े आगे जाके, ठीक है। लेकिन जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करा था, हायर मतलब 12th में आया, तो उसके फादर पास, मतलब उनकी डेथ हो गई और साकाल ने लोन लिया पढ़ने के लिए। उसने अपनी कोर्सेज छोड़, अपना स्टडीज छोड़ी नहीं और उसने एक वोकेशनल कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टेड था पढ़ाई में। लेकिन अम, देखो सिचुएशन देखो, वो यहाँ पे पढ़ाई छोड़ के अपने घर को भी संभाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। ओके, after some time, he got a job in a private firm and he designed a software. Okay, he designed a software which actually helped him to increase the sale of the company. बॉस ने उसके सर्विसेज को एक्नॉलेज किया और उसको रिवॉर्ड दिया विद अ प्रमोशन। ओके, आई थिंक सकल का क्लियर है। अब आते हैं विलास पे। विलास उसी का ही दोस्त है, ही इज 11 ईयर ओल्ड एंड सेम विलेज में रह रहे हैं। विलास के फादर एक फिशरमैन है लेकिन उनकी मदर पास अवे हो जाते हैं। तो उसकी जो सॉरी सॉरी एक मिनट, कुछ इसमें मिस्टेक कर दिया मैंने, सॉरी। हिज फादर पास्ड अवे, उसके जो फादर हैं वो 2 साल पहले उनकी डेथ हो जाती है। तो उसकी जो मदर है गीता, वो फिश बेचने लग जाती हैं टू फीड द फैमिली। ओके, अब क्या है, वो फिश कहाँ पे बेच रही है, मंडी में। तो शी इज अर्निंग अराउंड 20 to 30 रुपीज पर डे। विलास एट द सेम टाइम इज ऑल्सो पेशेंट ऑफ
अर्थराइटिस, एंड उसकी मदर उसका ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो और ही इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू गो टू द स्कूल, एंड तो ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड लुकिंग एट द यंगर ब्रदर मोहन। ओके, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी मदर सिक हो जाती है, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो ही हैड टू सपोर्ट द फैमिली, तो वो फोर्स होके उसको फिश बेचनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखो दोनों में कितना डिफरेंस हो गया है। वहां पे ही इज अर्निंग बेटर, अगर हम साकल की बात करें, ही इज अर्निंग बेटर and he is also involved in the development of the country. So he is an asset for the country. At the same time, Vilas becomes the liability to the country. I think the topic is clear.